Hello students, how are you all? Today we are going to read lesson 1 from First Flight class 10, A Letter to God, written by a Mexican writer J.L. Quintes. Just see the title of the lesson, A Letter to God. What it means? A letter to God means ईश्वर को एक पत्र, भगवान को एक पत्र. But is it possible to send a letter to God? Is there any mailing address of God? Just read the lesson and try to find out answer of these questions. Just read the lesson. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, Come for dinner. It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins, the boys exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white, as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no God. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We will all go hungry this year. But in the heart of all who lived in that solitary house, in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope,
the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm dot dot dot. He wrote to God on the envelope. Put the letter inside and still trouble. Went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea: answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature: God. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because
the post office employees are a bunch of crooks. Lynch. This is all in the story. थोड़ा सा इसका हिंदी अनुवाद करते हैं, थोड़ा सा इस कहानी को हिंदी में समझते हैं। होता क्या है, एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी की शिखा पर एक घर है जहां से पूरी घाटी और वहां पर जो खेत हैं वह साफ नजर आ सकते हैं। और उस शिखा पर घर है, ये कहीं लैटिन अमेरिका की बात चल रही है, कहीं लैटिन अमेरिका के किसी जगह की किसी गांव की बात चल रही है। तो वहां पर उस घर में जो रहता है उसका नाम है लेंचो, यानी जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी में उसका नाम है लेंचो। और लेंचो अपने जो उसके मक्के की फसल है, कॉर्न की जो फसल है, उसमें फूल आ गए हैं, लेकिन अब उसे इंतजार है बस थोड़ी सी बारिश का, कि बारिश हो जाए तो उसकी फसल कटने को तैयार है। अब वो बारिश का इंतजार कर रहा है और सोच रहा है कि वैसे तो खूब अच्छी बारिश हो जाए, लेकिन अगर अच्छी बारिश नहीं भी होती है तो थोड़ी सी बारिश भी हो जाए तो मेरी फसल तैयार हो जाएगी, मेरी फसल कटने को तैयार हो जाएगी और मेरा ये जो साल है, मेरे जो जीविका का साधन है वो चल जाएगा। अब वो इसी इंतजार में है, बारिश के इंतजार में, और अपनी जो उसकी धर्म पत्नी है उससे वो कहता है कि बस भगवान थोड़ी सी बारिश कर दे। उसकी वाइफ आंसर देती है कि अगर भगवान की इच्छा होगी तो बारिश जरूर होगी। और इतने में क्या होता है कि बारिश शुरू हो जाती है, खूब मोटी मोटी सी बारिश होती है। तो उस बारिश को फील करने के लिए, उस बारिश का आनंद लेने के लिए लेंचो अपने घर से बाहर निकलता है और वापस आकर अपने घर के सदस्यों से कहता है कि ये बारिश नहीं है, ये जो बारिश के रूप में जो मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं, ये मेरे लिए, ये हमारे लिए 10 सेंट्स के बराबर है। 10 सेंट्स मीनिंग कि जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है, रुपये से छोटा पैसा होता है, वैसे ही वहाँ पर जो वहाँ की मुद्रा है उसमें जो छोटी इकाई है वो सेंट्स है। तो कहता है कि जो ये बारिश की मोटी मोटी बूंदें ये 10 सेंट्स के बराबर है और जो छोटी छोटी बूंदें हैं ये 5 सेंट्स के बराबर है। वो बड़ा ही खुश होता है इस बारिश को देख के, लेकिन इतने में क्या होता है कि आसमान से बारिश के साथ ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। और उन ओलों को देखकर आपको पता ही है कि ओले जब किसान की फसल पे पड़ते हैं तो बहुत नुकसान होता है। तो जब ओले वो गिरते हुए देखता है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि चलो जल्दी ही ये पास हो जाए, जल्दी ही ये ओले गिरने बंद हो जाएं। लेकिन वो गिरने बंद नहीं होते, ओले लगातार गिरते रहते हैं। और बाद में जब आंधी तूफान जब खत्म हो जाता है वो क्या देखता है कि उसका जितना भी मक्का का जो भी फसल थी वो सब ओलों ने बर्बाद कर दी। सब जगह उसको सफेदी नजर आती है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पूरे खेतों में और सब जगह नमक डाल दिया हो, ऐसा उसको महसूस होता है। जब वो देखता है कि उसकी फसल बर्बाद होती है तो बड़ा दुखी होता है। दुखी होकर अपने घर वालों के पास आकर बोलता है कि शायद हम इस साल भूखे ही रह जाएंगे। तो उसकी वाइफ बोलती है कि भगवान किसी को भी भूखा नहीं रखता, अब हमारे पास केवल एक ही आशा है, भगवान की मदद, केवल भगवान ही अब हमारी सहायता कर सकते हैं। और ये बात स्टक कर जाती है लेंचो के दिमाग में कि हाँ अब केवल भगवान ही हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं, और उसका भगवान पे बड़ा विश्वास होता है। अब इस विश्वास में वो रात भर सोचता है, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग मैन था, शायद उसने पढ़ाई वगैरह कम कर दी, बड़ी मुश्किल से वो लिखने की कोशिश करता है कि मैं भगवान को अब एक चिट्ठी लिखूंगा और भगवान से कहूँगा कि वो मेरी मदद करे। तो वो भगवान को चिट्ठी लिखना शुरू करता है। तो वो भगवान को लिखता है कि हे ईश्वर, ऐसे ओलों ने मेरी पूरी फसल को नष्ट कर दिया और मुझे अब आपकी सहायता की बहुत आवश्यकता है, आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे 100 पीसोस, जो वहाँ की मुद्रा है, जिस जगह पे लेंचो रहता है वहाँ की मुद्रा है पीसो, तो मुझे अब आप क्या कीजिए 100 पीसोस भिजवाइए, जिससे मैं नई बीज खरीद कर फिर से फसल बो सकूं। और जब तक मेरी फसल जब तक वो फसल उत्पादन नहीं देती है, जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती, तब तक मेरे घर का खर्चा भी चलता रहे, मेरे बच्चे भूखे न रहे। ये सब वो बातें उस लेटर पे लिखता है और नेक्स्ट डे पोस्ट ऑफिस में जाकर उसे पोस्ट करता है और बाहर एड्रेस डालता है टू द गॉड, कि ये किसको जा रहा है पत्र, भगवान को जा रहा है।
अब अगले दिन जो पोस्ट मास्टर होता है जब वो चिट्ठियाँ निकालता है तो बड़ा हंसता है, उस चिट्ठी को देख के बोलता है उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसा पता पढ़ा जिसका एड्रेस था कि ये पत्र भगवान को मिले। अब भगवान का तो कोई एड्रेस होता नहीं है, तो बड़ा हंसता और हंसते हंसते उस चिट्ठी को लेकर अपने पोस्ट मास्टर के पास चला जाता है पोस्टमैन। तो पोस्ट मास्टर भी उस चिट्ठी को पढ़ के बड़ा हंसता है कि यार भगवान के लिए कौन चिट्ठी लिख सकता है। तो लेकिन हंसते हंसते पोस्ट मास्टर के दिमाग में आता है कि देखो इस इंसान का जिसने ये चिट्ठी लिखी है उस इंसान का कितना विश्वास है भगवान पर कि वो भगवान को पत्र लिख रहा है। तो वो सोचता है कि चलो इसका विश्वास बनाए रखते हैं, चलो देखते हैं जरा इसने लेटर पे क्या लिखा है और इसका जवाब देते हैं। लेकिन जैसे वो लेटर खोलता है तो लेटर पे तो कई पैसों की डिमांड थी कि उसे 100 पीसोस चाहिए थे। तो केवल अब इंक और पेपर से तो काम नहीं चलेगा, इसके लिए तो कुछ और भी करना पड़ेगा। तो अपने जितने भी उसके स्टाफ के लोग होते हैं उनसे सहायता बोलता है कि चलो मिलके इस आदमी की सहायता करते हैं, इसका विश्वास भगवान पर कायम रखते हैं। सबसे वो कलेक्ट करता है, अपने दोस्तों से भी कलेक्ट करता है और अपनी जो उसको सैलरी मिलती है, जो उसको तनख्वाह मिलती है, उसमें से भी वो कुछ हिस्सा उसमें जमा करता है। लेकिन फिर भी वो 100 पीसोस कंप्लीट जमा नहीं कर पाता, केवल 70 पीसों के आसपास वो पैसा जमा कर पाता है। और वो उस लिफाफे के अंदर उन पैसों को डालकर केवल एक सिग्नेचर के रूप में गॉड लिखता है और लेंचो के एड्रेस पर उसको डाल देता है। लेकिन लेंचो को तो इंतज़ार था, वो अगले दिन पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाता है और बोलता है कि क्या मेरे लिए कोई चिट्ठी है। तो जो पोस्टमैन था जिसने पहले वो चिट्ठी निकाली थी, वो उस चिट्ठी को जो पोस्ट मास्टर ने भगवान की तरफ से उसके लिए लिखी उसे हैंड ओवर कर देता है। अब जैसे ही वो अंदर से चिट्ठी के अंदर देखता है, पैसे गिनता है, तो उसके अंदर तो केवल 70 पैसे ही निकलते हैं। तो बड़ा ही मतलब उसके कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, कोई खुशी नहीं होती कि भगवान ने मुझे पैसे भेज दिए, पर वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने भगवान से 100 पैसों की डिमांड की थी, भगवान ने तो मुझे केवल 70 पैसों भेजे हैं। तो बोलता है कि चलो मुझे एक कागज़ दे सकते हो। दोबारा वो चिट्ठी लिखने के लिए मांगता है कागज़, उसे कागज़ दिया जाता है। वो लिखता है, चिट्ठी लिखता है कि हे ईश्वर, मुझे आप पर बड़ा विश्वास है और मैंने जो आपसे डिमांड करी 100 पीसोस की, तो शायद आपने वो 100 पीसोस भिजवाए होंगे, लेकिन अगली बार से आप ध्यान रखना कि जो बाकी के पैसे वो भी मुझे चाहिए, मुझे आवश्यकता है। लेकिन ध्यान रखना आपकी जो बाकी के पैसे आप मुझे भिजवाओगे वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भिजवाना, क्योंकि ये सब क्या है, पोस्ट ऑफिस में सब ठग बैठे हुए हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं और इन्होंने, आपने शायद 100 पैसों ही भिजवाए होंगे लेकिन इन्होंने 30 पैसे खा दिए और मुझे केवल 70 पैसों ही प्राप्त हुए। तो अगली बार पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मुझे पैसों मत भिजवाना। ये सब कुछ इस कहानी में था। तो कहानी में बेसिकली था क्या, एक आदमी का ट्रस्ट जो भगवान पे था। कहते हैं ना कि अगर मन में विश्वास हो तो पहाड़ भी अपने जगह से हिल जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ कहानी के माध्यम से बताया गया कि अगर आपका विश्वास किसी चीज़ के ऊपर है तो सब आपकी मदद करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा फनी टाइप की, थोड़ा सा आयरनिक था इसमें कहानी में, ठीक है। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हैं ब्लैक बोर्ड पे रिलेटेड टू द लेसन। you just copy these difficult words in your notebook and when school will reopen I will check all the things। हाँ ठीक है, तो अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। मैं इसकी अलग से भी आपको फ़ोटो खींच के भेज दूंगा, ठीक है। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए और learn these difficult words। Okay, good day।